Namaste ji, namaste. Welcome to Courtroom. Hope you're doing well. Today, one very crucial judgment has come in. That is Janhit Abhiyan versus Union of India, in which the Supreme Court has upheld the 103rd Constitution Amendment, which was effected by the government in 2019. The year is important from the point of view of an MCQ, because this is how, for example, exams such as CLAT PG, questions are framed out. If you're going to be taking the CLAT PG this year, you need to go through this judgment. The judgment has not yet been published, so I don't have the full citation for it as of right now when I'm shooting this lecture, but it will be published. I think it's right now it's 5 o'clock, should be published around the 6:30, 7 o'clock mark. And then if you are taking the CLAT PG in December 2023, please go through this judgment. All right, it's one very hot topic. So this lecture is from the point of view of what all can the examiner really ask you. Janhit Abhiyan versus Union of India, and more questions when the judgment, of course, is published. Now, Article 15, Clause 6 and Article 16, Clause 6, they were inserted by this judgment, and now it has been held to be valid. But there is a dissent of 2 judges and a majority view of 3 judges, so it was a 5-judge constitution bench, which is the minimum number of judges you any which way need for a constitution law matter. All right. Now, 15 clause 6, 16 clause 6. इस साल के DU LLB 2022 में, and this question was also there because I teach this very often in the offline batches and even in the mocks, which amendment inserted clause 6 of Article 15 and clause 6 in Article 16. This is the 103rd amendment, and 103rd amendment की जगह वो ये भी पूछ सकते हैं EWS. बेसिकली क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड आइदर विच वे. तो ये जो दोनों क्लॉज एक ही बार में इंसर्ट किए गए थे यहाँ पर आर्टिकल 15 एंड 16 के अंदर, दे आर एब्सोल्युटली ओके. दैट इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड. 3 judges have said, 2 have dissented. Dissent is always given under Article 145. Now, यहाँ पे किसके लिए बात की गई थी? These clauses were talking about economically weaker section of citizens. फॉरनर्स के ऊपर ये दोनों आर्टिकल, ये दोनों जो फंडामेंटल राइट्स एज गिवन इन पार्ट 3 व्हिच एक्सटेंड्स फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, some of the rights are available to foreigners but some are exclusively for citizens. और citizenship वाला जो पार्ट 2 है that extends from article 5 to article 11. तो ये EWS economically weaker section of citizen, other than ये जो clause 6 के अंदर बात की, other than those sections already mentioned in clause 4 and 5. So they are SEBC, socially and educationally backward classes. तो सरकार ने क्या करा था? This is in 2019, if I'm not mistaken. They basically got this amendment out in January of 2019, और 2019 में चुनाव था. So this is pretty much as its Article 15 is always said, this is a vote bank वाला article. It starts with कि सरकार shall not discriminate, and then it gives you now 5 grounds on which it can discriminate, thanks to vote bank politics. But the counter argument to that is that reservations are needed as well. So it's a very complex debate. Some feel very strongly against it, some feel very much in support with it. I won't go into those details. All right. So now 103rd Constitution Amendment basically provided for 10% EWS के लिए reservation, as you already know, over and above the existing 50% की जो upper limit, जो ceiling, as was decided in Indira Sahni 1992 वाला केस, कि 50% जी लिमिट है आपके SEBCs के लिए. आप बेसिकली ये जो कराएंगे रिजर्वेशन प्रोवाइड कराएंगे. तो ये जजमेंट दी गई 3:2 में. 3:2 में मतलब 3 जजों ने कहा हाँ जी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्कुल ओके है, 2 ने कह दिया चलो आगे, ये कुछ ओके नहीं. तो डिसेंट है, डिसेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अभी DY चंद्रचूड़ जी आ ही रहे हैं, आई थिंक कल परसों में आ जाएंगे, कल आ जाएंगे आई थिंक, एंड जस्टिस भट्ट. ऑलराइट. तो जस्टिस भट्ट ने जजमेंट ऑथर करी, UU ललित गेव हिज कंसेंट कि हाँ जी मेरा भी साइन इसी पे कर दो. ही डिडंट राइट अ सेपरेट ओपिनियन ऑन इट, बट बाकियों ने अपना अलग अलग काम करा. नाउ पहला जो मैं 3 की बात कर रहा हूं जिन्होंने कहा कि इट इज ओके, दिस अमेंडमेंट इज ओके, इट डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर. तो बेसिक जो प्रश्न जो कोर्ट में उठे थे कि कैन reservation be based on economic criterion alone? Can your economic background be the sole criteria for you to get reservation? The 3 judges said yes, it is okay. And one of the judges also gave a quotation, just as equals cannot be treated unequally,
अनइक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। ये क्लैट पीजी वाली जनता, ये कृपया करके आप ये लिख लीजिए, क्योंकि ऐसी कोटेशन देके भी वो आपसे पूछ लेता है ये जी कौन सी जजमेंट में कहाँ कोट हुई थी, बिकॉज सच कोट्स आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. I won't go into the grammatical meaning of such quotes because that is way beyond the point of view of point of this lecture. जज साहिबा ने ये भी कहा कि EWS is a category of disadvantage of its own. So if you are economically backward, they said that you form a distinct category of people, and it's you are at a disadvantage compared to other people who are well off than you. And this is a reasonable classification. Now, doctrine of reasonable classification has always been provided for under Article 14. Okay. तो और कुछ प्रश्न करे गए? चलो जी, ये तो हो गया, पहला प्रश्न ये था. अब ये 3 जजों की बात करें, डिसेंट वालों पे भी मैं आ रहा हूँ. गिव मी 2 मिनट्स, मैं उस पर भी आ रहा हूँ. नाउ 50% लिमिट के अंदर क्या काम करा गया? दैट कैन इट बी ब्रीच्ड. भाई 50% लिमिट तो आपने इंदिरा साहनी के केस में दे दी थी, अब आप कह रहे हो 10% और दे दो, तो ये तो ऐसे तो बहुत ज्यादा ड्रामा चलते रहेगा यहाँ पर. तो उन्होंने कहा जी कैन इट बी ब्रीच्ड, तो उन्होंने कहा यस, इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस इट कैन बी ब्रीच्ड. ऑलराइट, देन it only applies to SEBCs and not to all type of reservations. it मतलब the 50% वाली, तो ये एक्सक्लूसिवली है जी SEBCs के लिए. तो दूसरों को तो और टाइप ऑफ रिजर्वेशन मिल ही सकती है, तो जो 50% की जो लिमिट है उन्होंने कहा वो SEBCs के लिए ओनली है, बाकियों के लिए हम अलग तरीके की रिजर्वेशन ला सकते हैं. ठीक है जी. बट अब डिसेंट करने वालों ने क्या कह दिया? डिसेंट वाले कहते हैं, डिसेंट वालों ने अपनी जो बेसिक जो रेशियो है, डिसेंट का जो रेशियो है, रेशियो डेसिडेंडी आर्टिकल, या आपका डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसाइसिस कनेक्टेड व्हिच इज गिवन इन आर्टिकल 141, exclusion of OBCs and SC/STs from EWS reservations violates basic structure of the constitution. This Justice U Lalit and Justice Bhatt said कि जी ऐसा है जो जी आपने जो ये OBC SC/ST एक्सक्लूड कर दिए कि EWS वालों को अलग ग्रुप बना दिया, OBC वाले ऑलरेडी 50%, तो ये आपने एक्सक्लूड कैसे कर दिया? क्योंकि गरीब तो ये भी है, गरीब ये हैं, इनमें से गरीबों में से आपने एक और ग्रुप और काट दिया है कि चलो तुम ये दूसरे टाइप के गरीब हो, तुम एक टाइप के गरीब हो. ये यहाँ नहीं चलेगा. ये रेशियो है इस जजमेंट का. व्हेन आई रीड द जजमेंट, ऑफ कोर्स points become much more clearer, and may shoot another lecture elucidating the judgment. So they also said, dissent वालों ने भी पहले प्रश्न का उत्तर दिया, concept or reservation based on economic criterion, yes. Can you basically by amendment give reservation based on economic criterion alone? They said yes, but now the difference starts. However, so they mentioned or they referred to a important committee की report, that is Major Sinha Commission report. Year भी याद रखना है 2010. ये अगर किसी अगले साल के LLB एंट्रेंसेस में या क्लैट PG वगैरह में ये रिपोर्ट का नाम पूछ लें तो डोंट बी वेरी सरप्राइज्ड. दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर बेसिकली फ्रेम्ड आउट. ऑलराइट, नाउ मेन रेशियो जो डिसेंट का जो रेशियो है, दैट वी कांट एक्सक्लूड द पुअर अमंग SC ST OBCs फ्रॉम EWS. कि भाई ऐसा आपने ये जो आपने करा कि जी आपके पास तो ऑलरेडी बेनिफिट है, मतलब हम उनको कह रहे हैं OBC वालों को, SC ST वालों, भाइयों आपके पास तो ऑलरेडी बेनिफिट है, तो EWS में आपको रिजर्वेशन क्यों मिले? तो यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. वो कह रहा है भाई गरीब तो हम भी हैं, तो वो कहता है अरे तुम्हें रिजर्वेशन पहले तो दे दी. नहीं, वो कहता है जी हम तो यहाँ से भी आपके पास आ जाएंगे, और ऐसा ऑलरेडी एक दो केस में हो चुका है. तो ये प्योरली 2019 में जब ये जनवरी में जो मूव करी गई थी, इनसे वोट बैंक पैसिफाई होते हैं, लेकिन बहुत सारे लीगल लूप होल्स रह जाते हैं जिनको काफी लोग एक्सप्लॉइट कर जाते हैं. तो यहाँ पे भी यही दिक्कत जज साहब को लगी कि भाई ऐसा है, आप एक बताइए कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिससे SC ST OBC वगैरह हैं, और उसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, अब गरीब तो यहाँ भी, लेकिन अब आपको सिंस रिजर्वेशन, क्योंकि आप इन कास्ट से हो, आपको ये वाली रिजर्वेशन मिलेगी. EWS वाले हमारे जो दूसरे प्रकार के गरीब हैं, गरीबी, अब जज साहब कह रहे भैया गरीबी तो एक ही तरीके की हुई ना, कि अगर पैसे नहीं है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो ये डिस्टिंक्शन रियल लाइफ में आप इंप्लीमेंट कैसे कर पाएंगे? कि एक एंड पे आप कह रहे हैं कि जी आप इस प्रकार के गरीब हैं, आप वो वाली रिजर्वेशन लीजिए. वो कहता है जी गरीब तो मैं आपकी रिजर्वेशन इसका भी क्राइटेरियन मीट ऑन कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे भी आप रिजर्वेशन दो. तो ये सिस्टम चलेगा कैसे? इसलिए जज साहब ने कहा नहीं, हम नहीं मानते कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज
was okay कि ये मेन मुद्दा है डिसेंट का, जिसके ऊपर दो जज, जस्टिस भट्ट और जस्टिस यू यू ललित, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू यू ललित, उन्होंने अपनी रजामंदी इस पे नहीं दी, अपनी स्वीकृति उस पर नहीं दी। फिर इन्होंने एक और पॉइंट कहा कि अगर हम ये 50% के ऊपर ऐसे ब्रीच सबको अलाउ कर दें तो ये तो आप कंपार्टमेंटलाइजेशन, ये शब्द इन्होंने यूज करा, ये तो आप ये करेंगे, एंड द रूल ऑफ राइट टू इक्वालिटी विल बिकम राइट टू रिजर्वेशन, क्योंकि अब तो हर कोई वर्ग उठ के आएगा और कहेगा रिजर्वेशन दो, और नेता दे भी देंगे क्योंकि उन्हें पावर में रहना है। तो ऐसे तो आर्टिकल 15 को अमेंड करते चले जाओ, रिजर्वेशन देते चले जाओ, तो ये तो भाई ये तो दिस वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर एज प्रोपाउंडेड इन केशवानंद भारती 1973, if I'm not mistaken. I think I'm not mistaken. Okay, and we will go right back to Champakam Dorai Rajan. ये क्लासिक केस लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो वो कह रहे जी हम तो फिर से जो इतनी हमने प्रोग्रेस करी, इतनी जजमेंट्स दी, इतने पॉइंट क्लैरिफाई करे, आप तो हमें पीछे धकेल देंगे अगर हमने ये आपकी अमेंडमेंट अलाउ कर दी तो। ओके, so in summary, now let us sum it up. Can scheduled caste OBCs be excluded from EWS reservations? 3 जजों ने कहा yes, 2 ने कहा no. तो मतलब हमने अब गरीबी के भी 2 प्रकार कर दिए कि अगर आप भैया SC ST OBC की गरीबी में हो तो उधर रहो, तुम अगर EWS में जनरली अगर तुम इधर नहीं फॉल इन कर रहे और तुम वैसे गरीब हो तो तुम आ जाओ EWS के रिजर्वेशन के कोटे में 10% पे। ठीक है जी, 50% ब्रीच क्या हम कर सकते हैं? तो 3 जजों ने कहा यस वी कैन डू इट, एंड 2 ने कहा नहीं भाई साहब नहीं, हमने ये नहीं अलाउ करेंगे। ठीक है जी। रिजर्वेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये सारे जजों ने 5:0 के में कह दी यस, सारे हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। तो पर से इन्होंने ये कह दिया बेसिकली 2 पॉइंट पे ये भिड़ गए और 1 पॉइंट पे अग्री कर गए। ठीक है जी। तो मेन अगर मैं कहूँ ये शॉर्ट समरी है, whatever points that you can extract out, I'm sure that you can pause the lecture and keep on taking your notes. आपको क्या लगता है? I am always curious to know what students think of such issues. अगर आपको ये सारी बात समझ में आ गई, and if you're watching this lecture up till now, great and thank you so much. What do you feel? Leave a comment below. Discuss it out with people. I'm sure that increases your critical thinking skills as well. What do you think? Should EWS reservations be provided in addition to SC, ST, OBC reservations? Has the Supreme Court said something wrong? Is all of this reservation purely a vote bank politics play, or do we really need it? For how long do we need it? Etc. etc. You can freely talk and engage. If you are thinking of cracking any higher level examination such as the UPSC or judiciary, you need to engage in such conversations because it helps you in writing your mains ke answers, right? It gives you a lot of points as well. All right, wishing you all the very best. Hope to see your discussions and hope to see you very well if you're living in Delhi, then hope to see you protected from the pollution. Take care. All the best. Bye.